Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. My name is Divyanshi Singh and I am selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination 2020. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन ओशन रीजन को. So, Indian Ocean region and what is its significance for India. We will talk about that. So this lecture is part of mains classroom program. About more courses at Synopsis IAS, you can visit the website synopsisias.in. Here you can get information about special courses, GS classroom courses, optional courses, test series in detail. So now talking about the Indian Ocean region. So यहाँ पर we will be discussing जो फ्रेमवर्क होगा वो इस तरीके से होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन. सो इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजन फॉर इंडिया, राइट. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द challenges in Indian Ocean region that are there for India, right. Then what are the developments in the Indian Ocean region which are being done by India, and when there are challenges, so obviously what can be the way forward, how we can deal with those challenges. So we will be talking about that. So moving on, Indian Ocean की अगर हम बात करें, so Indian Ocean is an area which is there with multiple opportunities, right. Multiple resources are found here. So it has its very importance because of its strategic location also, right. So international trade is very much dependent upon that, and the resources which are found in this region, जैसे फिशिंग रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्सेज है, राइट. एंड इम्पॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट लाई इन दिस पर्टिकुलर ओशन रीजन, राइट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्योंकि इंडिया जो है इसमें इस तरीके से प्लेस्ड है, द लोकेशन ऑफ इंडिया इज सच दैट इट बिकम्स अ जोग्राफिकल एंड अ जियोपॉलिटिकल की स्टोन इन द रीजन, राइट. एंड ऑल्सो इंडिया बीइंग अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द रीजन, इंडिया का जो सिग्निफिकेंस है, इंडिया की जो सेंट्रलिटी है of India in the region is very much high, right. So we talk about the importance of Indian Ocean region for India किस तरीके से है. तो अगर हम देखें सबसे पहले तो लोकेशन वाइज, राइट. सो लोकेशन वाइज जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में, सो इट इज़ इस तरीके से है कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू इस्टैब्लिश, राइट, रिलेशंस, टू इस्टैब्लिश कम्युनिकेशंस विद कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया, with countries in West Asia, with countries in Africa. So यहाँ पर क्या है, if we are having good communication links with these countries, right, so यहाँ पर we can cooperate with them on areas like energy, on areas like trade, on areas like environment, right. So that becomes important. अगर हम अफ्रीका के साथ we have good connectivity, good linkages, right, then Africa has huge opportunity for market, as a market. वहाँ पर Indian goods के लिए market जो है, because Africa has many of the emerging nations with emerging economies, with fast growing economies. तो वहाँ पर market है for Indian goods. Also India can source raw material from Africa. Blue economy को आप exploit कर सकते हैं with African countries. Then West Asia में अगर हम जाएँ, so India depends on those countries for oil. So again good communication, good links are important. Then with Southeast Asian countries, mineral resources, right, and there are several other resources which India can source from them, right. So again it becomes important. तो अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, राइट. एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको इंडियन ओशन में कई सारे चोक पॉइंट्स मिलेंगे. you will find lot of choke points like Strait of Hormuz is there, Malaccan Strait है, right. So through these strait
क्या होता है कि जो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है या नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, सो दैट कम्स फ्रॉम दीज रीजन्स ओनली. सो इफ दीज चोक पॉइंट्स आर वेपनाइज्ड, इट विल बी अ वेरी सीरियस ब्लो टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी. सो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. देन इफ़ यू टॉक अबाउट किस तरीके से, सो करीब 80% जो वर्ल्ड का सी बॉर्न ट्रेड, राइट, ऑयल ट्रेड, दैट पासिस थ्रू चोक पॉइंट्स ऑफ दिस ओशन. सो अगर आप बात करो 40% जो है दैट ईस्ट से वेस्ट जो ऑयल वगैरह ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ होमरुज एंड 35% फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो दीज चोक पॉइंट्स हैव अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंस, राइट. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया का 95% ऑफ ट्रेड बाय इट्स वॉल्यूम एंड 70% ऑफ ट्रेड बाय इट्स वैल्यू दैट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन. सो यू कैन, आप ऑलरेडी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट. देन ब्लू इकॉनमी के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडियन ओशन रीजन इज़ अ रिसोर्स रिच रीजन. इट इज़ अ रिसोर्स रिच रीजन. यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस आपको मिलते हैं, ऑफशोर हाइड्रोकार्बन. सो 40% ऑफ वर्ल्ड का जो ऑफशोर ऑयल का प्रोडक्शन है वो आपके इंडियन ओशन बेसिन से होता है. सो अगैन यू कैन एस्टिमेट कि यहाँ पे कितने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं. देन 80% जो इंडिया का क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो आप समुद्र द्वारा इंपोर्ट करते हैं. सो वो भी इंडियन ओशन से ही आता है. सो अगैन यू कैन सी द डिपेंडेंस. सो अगर ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन पे इंडिया की डिपेंडेंस देखी जाए एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पे, तो इंडिया करीब 93% फॉर इट्स ऑयल डिपेंड करता है ऑन इंडियन ओशन, राइट. देन इंडिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टर ऑफ नेचुरल गैस. सो 45% जो है ऑफ इट्स इम्पोर्ट ऑफ इट्स नेचुरल गैस जो भी है दैट कम्स फ्रॉम द सी. देन इंडिया के अपने खुद के कुएँ वगैरह भी हैं, बॉम्बे हाई है एग्जाम्पल. सो ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन जो इंडिया का खुद एक्सप्लोर करता है, खुद प्रोड्यूस करता है, सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन, राइट. देन आपको इंडियन ओशन रीजन में कई सारे मिनरल्स मिलेंगे. सीबेड डीप सीबेड माइनिंग इंडिया को अलाउ करी बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इन 2040, राइट. सो देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशन. उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे, प्लेसर डिपॉजिट्स मिलेंगे. सो मालाबार कोस्ट वाले रीजन पे वी सी के थोरियम के हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, मोनाजाइट सैंड मिलती है विच इज़ ओर ऑफ थोरियम ओनली. सो ये क्या है, न्यूक्लियर मिनरल है. सो अगैन दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन मिनरल वाइज. उसके अलावा यहाँ पे आपको कोबाल्ट, निकल, सो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात की, सो कोबाल्ट, निकल, उसके आयरन, सल्फाइड डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह, दैट इज़ प्रेजेंट इन साइजेबल क्वान्टिटीज़ ऑन द सी बेड. सो दैट इज़ अगैन एन इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडो पैसिफिक में इंडिया इज़ बिकमिंग सेंट्रल. सो इंडियन सेंट्रलिटी इन द इंडो पैसिफिक. सो जियो पॉलिटिकली भी अगर आप कंसिडर करो, सो इंडिया की जो सिग्निफिकेंस है इन द रीजन दैट हैज़ इंक्रीज अ लॉट, राइट. देन ब्लू इकॉनमी में फिशिंग एंड एक्वाकल्चर. सो ग्लोबली 15% जो फिश कैच है दैट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन. सो अगैन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया. Then tourism wise भी Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands. So these Andaman and Lakshadweep, these are coral island, right. Then Andaman and Nicobar Islands, so these are important tourist hotspots. So again यहाँ पर it is significant for our economy. Then अगर हम बात करें कि multilateral cooperation in the Indian Ocean, so India has also partnering with countries in the Indian Ocean. So one इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. सो यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है कि इंडिया वुड बी नाउ फोकसिंग एंड नॉट जस्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बट वी वुड बी ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ऑन ब्लू इकॉनमी, मैरीटाइम रिसर्च पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, वाटर साइंस पे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे वी वुड बी focusing upon, environment पे we would be focusing upon, right. So there are huge scope, huge opportunities for India in the Indian Ocean, right. So these are opportunities. अब अगर हम बात करें कि
व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स, इंडिया क्या कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में. सो इंडिया के एफर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे. इंडिया इज़ पार्टनरिंग विद सेवरल कंट्रीज, इंडिया इज़ फॉर्मिंग सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो अगर आप कंट्री वाइज देखो तो इंडिया एंड सेशल्स, सो दे आर वर्किंग टुगेदर सो दैट हम एक नेवल बेस बना सकें ऑन द अजम्पशन आइलैंड. तो यहाँ पर इंडिया और सेशल्स के बीच में आपको कोऑपरेशन देखने को मिलता है. देन इंडिया एंड सिंगापुर के बारे में के बीच में हम देखें तो बोथ ऑफ देम हैव साइंड अ डील सो दैट इंडिया कैन गेट एक्सेस टू चंगी नेवल बेस ऑफ सिंगापुर, राइट. सो दिस इज़ द एरिया ऑफ कोऑपरेशन. देन इंडिया एंड मॉरिशियस जो है दे आर डेवलपिंग. यहाँ पर एक आइलैंड है आगलेगा, राइट. सो हियर डेवलपमेंट इज़ बीइंग डन जॉइंटली बाय इंडिया एंड मॉरिशियस, राइट. तो ताकि यहाँ पे ड्यूअल यूज़ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बनाई जा सके. दैट इंडिया एंड यूएसए का लेमोआ एग्रीमेंट हुआ, लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में. तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की शिप्स वगैरह रीफ्यूलिंग कर सकते हैं. इंडिया और ओमान के बीच में रिलेशन है. इंडिया कैन यूज़ पोर्ट ऑफ दुकम इन ओमान लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, राइट. इसी तरीके से इंडिया और फ्रांस का भी एग्रीमेंट है ताकि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए बोथ द कंट्रीज कैन एक्सेस ईच अदर इन द इंडियन ओशन. सो दीज आर सम ऑफ द डेवलपमेंट्स विच आर बीइंग डन बाय इंडिया इन द इंडियन ओशन. बट स्टिल देयर आर सेवरल चैलेंजेस किस तरीके से. वन इज चाइना. सो चाइनाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन. And China की string of pearl policy, right. So that is not in India's interest, right. India sees कि China is entering into India's sphere of influence. तो यहाँ पर India has to partner with countries in the Indian Ocean, right. India is net security provider in the region, so India has to take efforts. India has to develop its naval strength, and also India has to cooperate with these countries, right, so that we can significantly counter चाइना इन दिस रीजन. सो यहाँ पर इंडिया को रीजनल ग्रुपिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, लाइक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, बिम्स्टेक है. सो यहाँ पर इंडिया को इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए. उसके अलावा जो इंडिया के नेबर्स हैं, इंडिया हैज़ टू इंश्योर दैट इंडियाज नेबर आर सपोर्टिव ऑफ इंडिया led regionalism, right, with which our neighbors are comfortable. So we have to also extend all kinds of support to India's neighbors. And then India की जो maritime policy है that has to be more comprehensive. हमें ना सिर्फ जो है हमें terrorism पे फोकस करना है, बट वी ऑल्सो हैव टू काउंटर चाइना. देन वी ऑल्सो हैव टू फोकस अपॉन ब्लू इकॉनमी. हमें ना सिर्फ इंडियन ओशन को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जो वहाँ पर हैं वो भी हमें एड्रेस करनी है. सस्टेनेबल ग्रोथ भी हमें इंश्योर करना है, राइट. सो इंडिया हैज़ टू इंश्योर आत्मनिर्भरता इन ब्लू इकॉनमी, राइट. इंडिया हैज़ टू कोऑपरेट विद द नेबरिंग कंट्रीज, एंड इंडिया को अपनी नेवल स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए, right, so that China cannot gain significance in the Indian Ocean region. And also we can probably we can better deal with threats in the Indian Ocean, like threats, non-traditional threats जो हैं, जैसे कि piracy है, आपका sea based terrorism है, human trafficking है. So human trafficking has seen a surge इन द इंडियन ओशन रीजन. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आप बेटर डील कर पा रहे हो. रेफ्यूजी क्राइसिस है, माइग्रेशन है. सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस इन इंडियन ओशन रीजन. तो आप इससे कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए वी नीड बेटर ग्रुपिंग्स. वी नीड टू हैव अ पॉलिसी विद वेयर comprehensively we are dealing with the issues of security, both traditional and non-traditional. Then also we are focusing upon sustainable development, right. If we are doing mining, deep seabed mining, so that has to be environment friendly, right. So that also is a part where we should be focusing upon. Then we should also be focusing on sustainable development and sustainable growth,
not just India but all the regions in the Indian Ocean, they are growing sustainably and achieving great levels of economic development. Because अगर हमारे आसपास के पड़ोसी कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलपमेंट वहाँ अच्छा होगा एंड वी हैव बेटर इंटीग्रेशन विद दीज कंट्रीज, सो ट्रेड वाइज इकोनॉमी वाइज वो इंडिया के भी फेवर में होगा, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.